سلامونه پخیرونه ګډ مارنینګ سحر مو پخیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه جناب تاسو ټیپ ټاپ په مزي کې لیدونکو د پخیر پښتونخوا یو بل اپیزود سره دا وخت تاسو موږ ګوري جناب نیغ پنیغه د هم پښتو ونه لیدونکو دی پروګرام کې تاسو هم برخه اخیستلی شئ ځکه چې دا پروګرام نیغ پنیغه دی نو د لایف کال د لارې تاسو د پروګرام کې برخه اخیستلی شئ او د دې نه علاوه زموږ چې کوم پروګرام دی دا تاسو په سوشل میډیا باندې هم کتلی شئ سوشل میډیا باندې زما مقصد دا دی چې موږ د دې فل اپیزود چې دی هغه د هم پښتون یوټیوب چینل باندې اپلوډ کوو نو تاسو هغه ته دا فل اپیزود کتلی شئ او د دې نه علاوه زموږ چې کوم فیسبوک او انسټاګرام اکاونټ دی ایون ټویټر باندې موږ د دې شارټ ویډیوز تاسو لپاره چې کوم دي هغه هم اپلوډ کوو د مطلب دا دی چې تاسو زموږ د هم پښتون چې کوم سوشل میډیا اکاونټس دي که هغه ټویټر دی انسټاګرام دی او یا فیسبوک ته هغه تاسو فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل چې کوم دی هم پښتون والا هغه تاسو سبسکرایب کړئ ښه لیدونکو زموږ د پروګرام د ټول نه زبردست چې کوم سیګمنټ وي هغه د پخلی وي د شمع پخلی چې د هغې دپاره موږ سره مرسته کړې ده شمع بناسپتي اینډ کوکنګ آیل جوړولو والا اینډ جی السلام علیکم شازیه السلام علیکم څنګه تاسو ښه او زه ښه یم تاسو څنګه بالکل ټیک ټاک A1 زبردست دا راته وایي چې نن به د خیره سره څه تیاره خو زه دا لیدونکو ته وایم پرون چې دی نو شازیه ډېر زبردست چې دی نو دهي بړې تیار کړې وي اوس څوک دهي بړې وایي یا څوک دهي بلې وایي نو هغه ما خپل ډراما سیټ باندې وړو نو خلکو ډېر زیات خوښ کو ډېره مهرباني او د خوند خبره داره موږ ولا ایم ډي پروډکشن چې دی نو هغې په لاره کې هم لوکه که نه موږ خو یو فلور فرق دی نو چې زه بره ختم نه هغې وخوړم چې وخوړم نو ماته یہ کسی عورت نے بنائے ہیں کسی عورت نے بنائے نو مطلب دا دی که نه چې هغه تا لاسونو کې ټیسټ وکړم چې ستا خپل ماشاءالله هغه طریقه ده د دهي بړ والا نو هغه ټول ډېر زیات خوښ کړو ډېر زیات تعریف وکړو تھینک یو ویری مچ شازیه ډېره زیاته مننه ستا په وجه باندې موږ لږ وی چې دا زموږ د پروګرام شیف ته دومره زبردست کوکینګ کوي که نه نو تھینک یو ویری مچ او نن به څه تیاروئ نن به زه جوړوم چکن حلیم چکن حلیم اوکې ښه دې کې موږ ته پکار دی نیم کیلو چکن او موږ ته پکار دی دالونه خو دا موږ مخکې نه ګرینډ کړی دی دې کې جو گندم چنے کی دال مونگ کی دال مسور کی دال او وریجی موږ ټول ګرینډ کړی دی دا تقریبا 1 کیلو دی او موږ ته پکار دی 1 ٹی اسپون مالګه جو نه 2 چٹکی هلدی او حلیم مساله دا حلیم مساله دی د تیار ملاویږي دا به موږ دې کې اچو او د دې نه علاوه ټولو نه امپورټنټ چې موږ ته پکار دی هغه موږ ته پکار دی شمع آیل شمع آیل کې به موږ دا حلیم جوړو او شمع آیل تاسو ته ډېر ضروري دی چې هغه کې وټامین A او وټامین D دی سترګو دپاره او هډوکو دپاره دا چې مضبوطي او سترګې چې ټیکي نو ستاسو کار ټول به ټیکي ډېر غاو کړه سترګې به ټیکي که نه نو ایله بیا به کوکینګ کوو که نه او که نه ښه شازیه تاسو وویلې چې د دې چکن حلیم لپاره تاسو څو قسمه دال یاد کو وریجې یاد کړي جوم یاد کو غنم هم یاد کو تاسو د دې مقدار به یو برابر الو کم بالو دا به څنګه د ټول دالونه چې دی که نه تاسو 250 ګرام پورې به الو یو برابر او یو برابر کم زیات نه او دا تقریبا به 1 کیلو به جوړ شي نو دینا وونه اته خلکو دپاره حلیم به جوړ شي حلیم به جوړ او حلیم به جوړ شي ښه د دې ریسیپي مونږ دا دی چې مخکې به مونږ د چکن چې دی دا حلیم مسالې سره تیل کې به فرای وکړو او بیا دې کې 4 نه 15 ګلاس اوبه به اچو او هغه په سلو آنچ باندې بکیدو چې زما غوښه به پخې شي نرمه شي بیا به مونږ دا غوښه به وباسو او د دالونه چې دی د دې مونږ مکسچر جوړو بیسن په شان دی اوبو سره او بیا هغه مکسچر چې دی هغه مونږ هغه یخني کې سلو به اچو چې هغه ګوټلې نه جوړي دې کې بس یو مسله دی چې د ګرینډ دالونه دي د 0 نه 15 منټه دا به حلیم پخي خو کنټینیوس تاسو به چمچا به دې کې چلی چمچا زه تاسو نه یو تپوس کوم که نه ماشاءالله تاسو پښتو هم داسې ده چې زبردسته ده تاسو دا ویلي چې تاسو به دا غوښه اوبو کې واچوئ هغې کې به دغه مساله به پکې واچوئ د حلیم مساله ټیک شو جي هغه به یشیږي تر هغې چې دا غوښه خوړي نه شي غوښه چې خوړي نه شو نو دا چکن به تاسو روباسئ او په هغه یخنۍ کې به تاسو چې کوم پیسټ جوړ کړی دی که لږه دا به داسې کې اوبو سره مکس کې یو پیسټ غوندې به جوړ شي د دالونو
دا به ورو تاسو هغه یخنۍ ته اچوي او هغې کې به سمسۍ وهئ رایټ نو بیا به دا چکن چې کوم تاسو یشیرلی دی هغه بیا څه ټیم ایډ کوئ چې دا پخول دا راشي که نه چې لاس 15 نه 10 منټه پاتې شي بیا به د چکن چې که نه دا مونږ ریشه ریشه به کوو مخکې لاس سره او لاس سره بیا هغه به مونږ دې کې اچو مکس به کوو او بیا لاست کې مونږ دا کوکنګ آیل تړکا به لګو شمع کوکنګ آیل تړکا به لګو دې کې خالی لہسن او د شین مرچ کې دی آغا باریک باریک کٹ کو آغا دے کے مونږ گرم کو او آغا تڑکا به مونږ د حلیم باندې لګو اوس یو بل تپوس کوم ځکه زما حلیم ډیر زیات خوښ وي نو زه دا تپوس کوم چې کله تاسو دې کې دا دالونه ایډ کړئ نو دا خو بیا د اوبه دي نو دا بیا خپله ټینګېږي چې دې کې تاسو سمسې وهئ نو به نه سمسا به وښی که او هغې سره به دا ټینګېږي او ادروایز به دې کې ګوټلې به جوړ شي ښه صحیح ځکه چې ثابت دالونو حلیم چې دی که نه هغه باندې 3 نه 4 غنټې لګي او دا نیم غنټې کې به تیار شي نیمه غنټه کې او نیمه غنټه کې 40 منټ نیمه غنټه تاسو په دې کې دا اونر چې لکه دا مالګه دا سیزونه خو په دې مساله کې به مې که نه نه دې کې مالګه ای خو مالګه دې کې کم ای ښه جی تو ځکه مونږ دې نه 1 ټي سپون مالګه بیل به هغه کې اچې بیا به ادروایز هغه کې مالګه به کم ښه دا راته ځینې که زه غلطي کوم نه ماته ووایه ځینې خلک چې دي هغه شین مرچکې اور شنه دنیا میده کې دي سره دي د پاسه اچي او ګارنیشینګ دپاره یې نه هغه خوړل دپاره کم دی تا سره شته دا دی او جی نه زه به دې سره رایتم جوړوم هغه دپاره ما سره ماستم دی او ما سره بادرنګ هم دی اوکې د سلاد پتې دي ډېر ښه ټماټر دي او انین دي او دا دنیا مرچکې دا ټول به دغه کې رایتا کې به رایتا او ګارنیشینګ دپاره ځکه چې حلیم سره رایتا ډېر مزه کوي ښه صحیح نو ستاسو چې کوم رایتا حلیم سره جوړوي کې به څه اچوئ هغه کې بادرنګ ټماټر پیاز دا به پکې اچوئ او باریک به کټ کوو او هغه د ماستا کې به مونږ مکس کوو او هغه کې لږ شانتې مالګه او لږ شانتې د چاټ مساله به اچو تیار به کړو ډېر ښه صحیح ده تھینک یو ویری مچ جی شازیه لیدونکو د یو دمې طرف ته ځو دمې نه وروسته چې راشو نو موږ سره میلمانه ناست دي جناب ویلکم بیک ټو پخیر پښتونخوا یو ځلې بیا ستړي مشي پخیر پښتونخوا ته لیدونکو ما سره پروګرام کې اولنۍ میلمنه دلته ناست ده اف کورس د ډیجیټل دور دی او دې کې نوي خبرې موږ تاسو له راځي ظاهره خبر انسان هر ورځ څه نه څه نوي زده کوي مطلب که موږ دا وایو چې هر یو فیلډ کې چې تاسو یې که نه نو اوس هر ورځ دومره څیزونه تبدیلیږي او چینج کېږي او نوښت را روان دی چې انسان او هغه فیلډ چې کوم دی هغې کې کار کوونو والا چې دی نو هغه پکار چې هر وخت ځان اپډیټډ وساتي که نه نو بیا وروسته پاتې دی ریس کې داسې د ډیجیټل چې کوم دود نو په هغې کې ډېر څیزونه نوي مخې ته راځي داسې ما سره یو میلمانه دلته کې ناست سره جناب هغې د عبدالولي خان یونیورسټي نه چې کوم دی هغې په 2018 کې چې دی نو هغې خپل تعلیم چې دی هغې ترسره کړی دی اور 2018 نه هغې کار کوي د سوشل میډیا کې ایز ا سوشل میډیا مینیجر دا سوشل میډیا لپاره هم د مینیجر ضرورت دي نور څه هغې سره دې باره کې معلومات دي سو 2018 نه پر دې خواته هغه کې اکټیو د هغې سره به خبرې کوو خو زموږ دا میلمنه ولي چې پښتو نشي ویلی نو دې سره به زه اردو کې خبرې کوم السلام علیکم اقرا کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئیں اوکے تو جب ہم نوشہرہ کی بات کرتے ہیں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ نے عبدالولی خان یونیورسٹی سے پڑھا بالکل تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو پشتو کیسے نہیں آتی نہیں ایکچولی میرے بابا گورنمنٹ آفیسر ہے نا تو دیٹس وائی ہم لوگ نوشہرہ میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں ایک سال بیسیکلی کہاں سے تعلق ہے آپ بیسیکلی میں فیصل آباد سے ہوں فیصل آباد سے ہیں آپ اچھا ٹھیک ہے تو پھر آپ نے یونیورسٹی ابھی پڑھ رہی ہیں اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو مردان میں اور نوشہرہ سے پھر آپ جاتی ہیں یونیورسٹی کیونکہ عبدالولہ خان یونیورسٹی مردان میں بالکل میں بی بی اے کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا 3rd سیمسٹر ہے بٹ میری جو باقی اسکلز وغیرہ ہیں وہ تو میری پہلے سے تھی تو میں نے یہی ٹریننگ وغیرہ کا سسٹم جو ہے وہ میں نے عبدالولی خان یونیورسٹی سے اسٹارٹ کیا ٹھیک ہے تو 3rd سیمسٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تقریباً سال کے آس پاس ہو گیا جی بالکل ٹھیک ہے اچھا تو مجھے بتائیں کہ ابھی پشتو کتنی سیکھی ہوئی ہے سیکھتی ہیں یا نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پسند
नहीं, एक्चुअली मुझे ये है कि मैंने मार्केटिंग की तरफ जाना है ना, तो दैट्स वाई आपको हर लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जब मैं KPK में रहती हूँ तो मुझे पश्तो आनी चाहिए। दैट्स वाई मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे थोड़ी बहुत तो पश्तो आए। अभी मुझे समझ आती है वो भी थोड़ी बहुत, तो लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे आ जाए। इंशाल्लाह 4 साल है तो आ जाएगी। अच्छा, तो उसके सीखने के लिए क्या करती हैं? उसके लिए लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करती हूँ, बात करती हैं जी, लोगों बिल्कुल। के साथ, ठीक है। जी। तो मेरे प्रोग्राम में यूँ तो मेरे साथ कम्युनिकेट करें आप पश्तो में, तो आपको सीख जाएंगी और हमें भी हम सिखा देंगे आपको पश्तो। बेसिकली सबसे पहले एक सेंटेंस था जो मैंने सीखा था ना, तो मैंने कहा अगर मैंने किसी को बताना हो तो मुझे पश्तो नहीं आती है तो मैं क्या कहूँगी। तो एक मेरी दोस्त है तो उसने बोला कि बोलना कि माता पश्तो ना राजी। अच्छा। तो मैंने एक लड़की थी, उसने मुझे बोला कि पश्तो में बोला ना, मैंने कहा माता पश्तो ना राजी। वो हंसना शुरू हो गई। मैंने कहा ये क्यों हंस रही है। मैंने घर आके स्टेटस लगाया बाकायदा कि ये क्यों हंसी थी। वो कहती है कि ये इसलिए हंसी थी क्योंकि आपने कहा कि मुझे पश्तो नहीं आती और आप पश्तो में ही बोल रही थी। अच्छा, ठीक है। तो अब आप हमें बताएं कि आप कह रहे हैं कि मैं मार्केटिंग की तरफ जा रही हैं। आपको जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया मैनेजर की हैसियत से आप काम कर रही हैं, तो आप पढ़ भी रही हैं साथ में। तो हमें थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइएगा ताकि हमें और देखने वालों को ये पता चले कि ओके, सोशल मीडिया मैनेजर क्या करता है। और आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपने मार्केटिंग में जाना है आगे जाके, तो क्या ये सोशल मीडिया ही होगा आपका प्लेटफॉर्म या ये, और इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैंने 2018 में जो है अपना करियर का आगाज़ किया था ना एज अ फ्रीलांसर। ओके। बट सबसे पहले मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मैंने इसी फील्ड की तरफ जाना है या यही स्किल सीखनी है। सबसे पहले मेरे बाबा ने इस चीज़ की तरफ लगाया कि फाइवर पे होती है गिग्स ना, तो वो गिग्स शेयर करने पे लगाया। उससे आगे आगे फिर मुझे सोशल मीडिया मैनेजर ना, उसके बाद फिर मुझे आगे मतलब एक्सप्लोर करना था ना चीज़ों को। तो मैंने कहा कि कोई ना एक स्किल चूज़ की जाए जिसकी तरफ बंदा सीखे और उसी को आगे लेके चले। तो मैंने एज अ सोशल मीडिया मैनेजर भी काम किया, एज अ SEO एक्सपर्ट भी काम किया। SEO होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या तो करता है? वो ये करता है कि कोई भी वेबसाइट होती है या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट होता है तो उसको रैंक करता है। मतलब गूगल है, सर्च इंजन है, कोई भी है, बेशक वो बिंग है या गूगल है, तो उस पे टॉप पे आए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, और एज ए सोशल मीडिया मैनेजर क्या करती हैं? सोशल मीडिया मैनेजर के फॉलोअर्स किस तरह बढ़ाए जाते हैं, उसको अकाउंट को या फेसबुक पेज को या इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाता है, उसका बायो कैसे रखा जाता है। क्योंकि हम यूजुअली ऐसा करते हैं कि उसमें ये मेंशन कर देते हैं कि मैं फ़लाँ चीज़ करता हूँ, उसके बाद मेरा जी ये हॉबीज़ है मेरी, बस ये चीज़ें मेंशन कर देते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि इसमें टैग्स भी लगाने हैं या इसमें ये सारी चीज़ें भी होंगी। हम इस चीज़ पे ये नहीं करते हैं कि हमारे कंपटीटर्स कौन है और उसके बाद हमारी कीवर्ड रिसर्च नहीं हम करते। तो वो प्रोफेशनल लोग करते हैं, तो वो इस चीज़ में आ जाता है। अच्छा, मुझे पता है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोग अपने बायो नहीं डालते हैं, तो हमारे KP की तरफ तो ये बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ अगर हम देख लें तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जिनको इनके बारे में नहीं पता, सेलिब्रिटीज़ के अलावा बहुत सारी इस तरह के ब्रांड्स हैं, कंपनियां हैं जिनको नहीं पता इनको की ज़रूरत है। तब मुझे पता है कि बाकायदा आपने सीखा, इंटरनेट से सीखा, कहीं से कोर्स किया, डिप्लोमा किया, क्या किया? मैंने डिजिटल मार्केटिंग का ना, डिजिटल मार्केटिंग भी सोशल मीडिया के आगे फिर प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले डिजी स्किल जो कि बिल्कुल फ्री है ना, तो उससे सीखा, उससे कोर्स किया। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स को एक्सप्लोर किया। उसके बाद जब जैसे जैसे मुझे थोड़ी नौहा होती गई तो मैंने जो है कोर्सेरा एंड बाकी जो कोर्सेज थे उन पे ट्राई किया। उसके बाद मैंने उससे पेड कोर्सेज भी किए ना, तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज़ से 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे मैंने कोर्सेज़ किए और 2 मैंने पेड किए हैं। उसके बाद फिर जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मैंने एक ट्रिक देखी ना यूट्यूब पे कि उन्होंने बताया कि आप इस तरह से अप्लाई करें तो इतने दिन में आपको रिप्लाई आ जाएगा, तो वो आपका फ्री होगा ना। मतलब $100 का जो है वो कोर्स होता है और वो आपको फ्री में मिल जाता है। तो ये तो बनने के लिए लॉटरी निकल आती है। तो इस वजह से फिर बाकी कोर्सेज मैंने जो है वो स्पेशली उसके लिए जो स्टूडेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अभी जाहिर सी बात है आप स्टूडेंट हैं और जहाँ आप हैं वहाँ पे ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको लोग कैसे अप्रोच करते हैं या आप किसी को अप्रोच करते हैं? आप लोगों के साथ कैसे काम कर रही हैं आप? जब मैं अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में न्यू आई थी, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं था, मेरा इस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट नहीं था कि मैं लोगों को इस चीज़ की तरफ लेके आऊँ ना। तो हमारी यूनिवर्सिटी में स्पेशली एक कौंसल है, स्टूडेंट कौंसल,
तो उसको जो है वो उसके पैटर्न जो हैं वो वाइस चांसलर हैं, देन उसको फिर प्रोवोस्ट हैं, डिप्टी प्रोवोस्ट हैं। तो ये मतलब उनको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है ना, और वो सारी उस कौंसल को डील करते हैं। तो उस कौंसल के थ्रू मैंने जो है स्टूडेंट्स को अप्रोच करना शुरू किया और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना शुरू की। लाइव सेशंस भी होते थे हमारे, जब ये गर्मियों की छुट्टियां हुई तो हमारे लाइव सेशंस भी होते थे। उसके बाद हमने मतलब फ़िज़िकली आमने सामने बैठ के भी प्रैक्टिकली भी लोगों को सिखाया है, और हम उनको टास्क भी देते थे ताकि वो मतलब करें और फिर हमें बताएं कि उनको कैसा लग रहा है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा ठीक है, अगर कोई कंपनी है, कोई ब्रांड है और आपसे अप्रोच करते हैं तो आप उसके लिए क्या काम कर सकते हैं? और बायो जो जैसे आपने पहले बताया कि वो सही नहीं डालते हैं, उसके बारे में चीज़ें नहीं, तो अगर अब ये फ़र्क करता है आपके अकाउंट के ऊपर, जो आपका अकाउंट होता है क्या इफ़ेक्ट करता है उसको? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी ब्रांड का अकाउंट है जी, ठीक है, तो उस पर आप अगर कोई कम्पिटिटर अपना रिसर्च नहीं करते हैं, कोई भी बिज़नेस होता है उसमें आपको कम्पिटिटिव एंड सो ऑन चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती है पहले। अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर आपका जो बिज़नेस है या आपका ब्रांड है उसमें आपको लॉस हो सकता है, ठीक है, लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब आप कम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपको ये पता होता है कि मेरा जो कम्पिटिटर है उसने ये चीज़ें की हुई हैं, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है, इतना पैसा लगाना पड़ेगा, इतनी एड्स लगानी पड़ेंगी, फेसबुक पे हो या वो इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पे भी हो, मुझे ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हो। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च होती है, नीश रिसर्च होती है कि आप किस चीज़ की तरफ जाना चाहते हो, किस बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हो। नहीं वो तो बिजनेस आपने डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल पानी का है, जी जी, मिनरल वाटर का है, ठीक है, तो उसके हवाले से फिर वो ब्रांड जो है या वो जो भी प्रोडक्ट है वो अपना अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे आपने कहा ना इंस्टाग्राम और फेसबुक का, तो आप भी सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही ज़्यादा काम करते हो यानी बाकी भी जो नहीं, प्लेटफॉर्म? मैं वेबसाइट्स पे ज़्यादा करती हूँ। एसईओ जो होती है वो वेबसाइट की होती है। अच्छा जी, मेन वेबसाइट को टारगेट करते हैं, देन बाकी चीज़ें फिर बाद में आ जाती हैं। ओके, अब वेबसाइट के बारे में चूंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, मैं भी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता, बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि वेबसाइट कौन लोग देखते हैं ज़्यादा? वेबसाइट कोई आम भी लोगों की बात करें। बिल्कुल, वेबसाइट जब कोई स्टोर होता है या ब्लॉगिंग होती है, वो ज़्यादा यूएसए यूके के लोग देखते हैं, क्योंकि हमारे ये चीज़ रिसर्च नहीं करते हैं कि जी कौन सी चीज़ किस लिए सूट करेगी। जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी आवाम है वही ये सर्च करती है और कि वो इस एक चीज़ के लिए महदूद एक लिमिट तक वो लोग हैं जो ये सर्च करते हैं, ठीक है, ओके, तो वही सर्च करते हैं। लेकिन जो यूके, यूएसए एंड बाकी सारे कंट्रीज़ हैं उसमें वो प्रॉपर रिसर्च करके फिर आगे जाते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए, इस स्किन के लिए ये प्रोडक्ट है, हेयर प्रोडक्ट है तो इस चीज़ के लिए है, तो प्रॉपर रिसर्च करके लेके जाते हैं। तो यूएसए, यूके को टारगेट करके तो ब्लॉगिंग जो होता है आर्टिकल वगैरह लिखना, हाँ, तो वो चीज़ भी आ जाती है ब्लॉगिंग उसमें। पे आते हैं भाई, अभी तो बहुत सारे ब्लॉगर्स हो गए हैं भाई, किसी के 400 भी हैं तो वो भी ब्लॉगर है, मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स की मैं बात कर रही हूँ। ये फिर अब ये चीज़ होती है ना कि जब आप गूगल पे जाते हैं ना, विकिपीडिया पे आना चाहिए भाई, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि ब्लॉगर्स के ऊपर कौन सा अच्छा ब्लॉगर है, या कैसे हम डिसाइड करें कि इसकी आर्टिकल जो है वो ज़्यादा सही है या इसने सही लिखा होगा? नहीं, जो भी आर्टिकल होता है उसमें आप देखो कि आपकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है, आपको जो चाहिए वो कौन आपको दे रहा है, कौन सा ब्लॉगर आपको अपने आर्टिकल के जरिए वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ही आपके लिए बेस्ट ब्लॉगर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ब्लॉगर हूँ, ठीक है, और मैंने इस बॉल पेन के बारे में बहुत सारी तारीफ़ की है क्योंकि मुझे इसका जो ऑनर है उसने पैसे दिए हैं, मैंने वो चीज़ें जो इसमें नहीं है वो भी मैंने बोल दी हैं। आपने ये आर्टिकल देख लिया, आपने वो चीज़ खरीद ली, लेकिन वो चीज़ तो इसमें नहीं है, बिल्कुल, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूँ ब्लॉगर को? बिल्कुल, ठीक है, तो ये आप मेरा सवाल समझ गई? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो एज एक बंदा की जो इंटरनेट पे शॉपिंग कर रहा है, एक चीज़ ले रहा है, तो क्या आप उसको सजेस्ट करेंगे कि उसने अगर कोई एक प्रोडक्ट लेना है इंटरनेट से तो क्या सर्च करे, कौन से आर्टिकल जो हैं वो सही हैं, या किस तरह के ब्लॉगर को कि यार ये पैसे लेके गलत चीज़ तो नहीं हमें आर्टिकल वो आगे कर रहा, ठीक है, या क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं होते, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, उसको हैं ये ले लें पैसे, आप ज़रा लिखें। हमारी शोबिस में होता है पैसे दे के अपने ड्रामे के ऊपर वो कह रहे हैं हमारे ये प्रोग्राम है या ये ड्रामा इसके ऊपर आर्टिकल वो लिख लेते हैं, बिल्कुल हैं, ऐसा होता है। तो ये हम कैसे हैं फिर हम इसमें ढूंढें सही वाला?
इसमें सबसे ये चीज़ होती है कि सबसे पहले तो आप क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट लिंक करते हैं ना, उसमें जब प्रोडक्ट लिंक की जाती है तो उसमें रिव्यूज़ वगैरह होते हैं ना। हाँ। तो रिव्यूज़ से चेक करें कि कौन सा बेस्ट दे रहा है, और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो पिक्चर्स पे करें। रिव्यूज़ में जो पिक्चर्स मेंशन होती है ना, उन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि पिक्चर्स तो कोई फेक नहीं दे रहा होता ना। अच्छा, अभी रिव्यू पे आते हैं। मैं उस दिन नेट पे कोई चीज़ देख रही थी, फिर मैंने कहा ये मैं लेती हूँ, एंड देन फिर मैं रिव्यू पे गई ना, तो मैंने कहा कि ये चीज़ जो है, ये मुझे क्या पता कि ये कमेंट इन्होंने खुद तो नहीं करवाए। शक होता है ना कि भाई इतनी मतलब महंगी चीज़ मैं मंगवा रही हूँ एक बहुत दूर जगह से। अच्छा जी, साकिब हैं हमारे साथ कॉलर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साकिब संगई तासु खैर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो ठीक अल्लाह करम तासु खैर, तबीयत खरे तासु? अल्लाह करम जी। साकिब से बबेल ख्वाड़े जी तासु टॉपिक खोज फॉलो कोम डे टाइम में तकरीबन 10-15 खबर की कवर से लगी है। मसला है परी ऑनलाइन ऑर्डर के चदा स्पैम और फेक पकड़ जाती। आई एम सॉरी साकिब सासु आवाज करके के तासु युजल बियादा खबर रिपीट के वैम ऑनलाइन ऑर्डर चिसुम रही पनेट वाने मन को आगे के खमश नो डाउट खो आगे के फेक कम देर जाती मन को आगे चे पे कोर तरह रची नो आगे जमंग दे रिक्वायरमेंट मुताबिक नहीं। हां सही सही। जी जी, नो मंग वे के पर गवर्नमेंट हर चीज कोई किसी से रूल दगा जोड़ के कम से कम चिसो पैसे पे के चे कोई तो कोई चीज सही मिलावी जी ना। सही खबर है के साकिब सही। जी जी जी, नो बस तासु पे वसातत सर बदा खबर मंग दगा को इंशाल्लाह तासु फॉरवर्ड के पुटा पे का रिक्वेस्ट हुई वो इंशाल्लाह खामा खास ना सो की खाता से लगी कि गवर्नमेंट दे तनाज से नजीबा खबरों की आगे आगे वो मनी जी नंद वो नजीबा को ذکر دا چې नजीबा को ډیره مشهور ده په پاکستان کې خام خبرې خلک اوري نजीبا کو پس دلربا ډرام یو 10-20 سال مخکې کړو سم د دلربا خلک پیژني نجیبې نه ډیر خلک هم خلک پیژني सही है साकिब सही है थैंक यू ओके जी हमारे कॉलर थे पेशावर से वो ये अच्छा वो ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन जो चीज़ मंगवाते हैं तो जो चीज़ वो तस्वीर लगी होती है जब हम वो मंगवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ ड्रेसेस के हवाले से हुआ है। मैंने एक ड्रेस मंगवाया वो बहुत खूबसूरत लग रहा था जो वह तो वो फैब्रिक और वो उस पर जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो इतनी थर्ड क्लास थी कि मैं कहती ये तो मैं नहीं पहन सकती हूँ। ठीक है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो कह रहे हैं कि हम जब पैसे देते हैं और हम एक चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो तो खैर गवर्नमेंट से कह रहे थे कि मुझे कह रहे थे कि आप ये बात करें तो गवर्नमेंट आपकी बात सुन लेगी क्योंकि आप बड़े मशहूर हैं तो आपकी बात सुन लेंगे कि इस तरह कुछ कर लें कि ऑनलाइन जो लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं और भेज रहे हैं दोनों, तो उन पे कोई क्वालिटी चेक होनी चाहिए। तो अब आप बताएं जब इस तरह की सिचुएशन ज़्यादातर होती है, अब तो बहुत सारे मीम्स इसके ऊपर बने हुए ना कि एक आपको दिखाते कुछ और हैं लेकिन जब आपको डिलीवर होता है वो कुछ और होता है। बिल्कुल, इसके लिए ये है कि रिव्यू देने का हक तो आपके पास है ना। तो जब आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाती है, अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई है तो आप रिव्यू दें, जैसा मतलब सच्चा रिव्यू दें। ये नहीं है कि आपको प्रोडक्ट अच्छी नहीं रिसीव हुई है और आप दे रहे हो कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ये है वो है। तो इस तरह की चीज़ एक मेरे साथ भी हुई है। तो इंस्टाग्राम अकाउंट था एक, मैंने देखा कि यार इस पर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ है ना, और उसके बाद मैंने कहा मैंने हैंड बैग जो था ना वो मंगवाना था। उसके बाद मैंने रिसर्च की एंड देन रिव्यूज़ वगैरह चेक किए, उन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरीज लगाई हुई थी, हैप्पी कस्टमर एंड सो ऑन। तो जब मैंने देखा, मैंने ऑर्डर किया, तो थोड़ी देर बाद क्या कुछ दिनों बाद ना आया है बंदा, तो उसने आके मतलब कॉल की है कि जी आके रिसीव कर लो। तो जब रिसीव किया, पार्सल खोला है तो बैग कोई और था और आया कोई और है, और उसका साइज़ जो था वो ऐसा था कि जैसे पाउच होता है ओनली। तो जैसे ही मैंने देखा है तो मेरी मम्मा कहती हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसे किसी बच्चे ने पहनना होता है। तो सेम इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन रिव्यू देने का हक आपके पास लेकिन है। आपने उसके रिव्यू देखे थे? बिल्कुल मैंने रिव्यू देखे थे, पॉजिटिव थे? बिल्कुल पॉजिटिव थे। तो अब आप चूँकि आपका काम है, अब दोबारा बात आपके ऊपर आ रही है ये कि जैसे आपने कहा कि हम फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, हम सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा दें। हम आपको पता है सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी जो आप खरीद सकते हैं, लाइक्स भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि कमेंट्स अगर आप खरीद सकते हैं तो आप करवा भी सकते हैं। बिल्कुल
ठीक है, बिल्कुल। तो फिर रिव्यू भी तो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं हो गया ना कि आप बिल्कुल। उस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर बिल्कुल। सकते हैं। लेकिन मुझे उस टाइम इतनी नो हाउ नहीं थी कि मैं नहीं, आपकी नहीं बात करूँ, मैं वैसे बात करूँ बिल्कुल। क्योंकि आप कह रही हैं ना कि रिव्यू देखा करें। बिल्कुल। तो रिव्यू का ये होता है कि वो अच्छे रिव्यू करवा भी सकते हैं किसी से, बिल्कुल। ये भी एक बिल्कुल। सीन है। अच्छा, चूँकि अभी आप आई हैं तो मैं इससे बेफ़ायदा ये उठाऊंगी कि बहुत सारे लोग हैं अब, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे आपने देख लिया और आपने बहुत लोग जो हैं तो वो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, उसमें बहुत कपड़े भी हैं, उसमें जूते भी हैं, उसमें ज़्यादातर ख़वातीन बिल्कुल, हैं, ठीक है। बिल्कुल। इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ है कि जिसमें ख़वातीन ज़्यादा बिल्कुल। एक्टिव है। अभी आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि एक प्रोडक्ट अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू, क्योंकि ज़्यादा जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे कम लोग हैं कि जो वेबसाइट के ऊपर जाते हैं जिनको समझ है कि मैं हमने बिल्कुल। जाना है वहाँ पर। एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको नहीं पता, वो बस इंस्टाग्राम पे जाते हैं, वहाँ पे ऑर्डर करते हैं, या फेसबुक है वहाँ पे क्लिक करते हैं और वहाँ से वो ऑर्डर कर लेते हैं। और ये आम लोगों के लिए भी इजी है कि भाई इजी वो है। तो अब इसमें ये बताएं कि जो लाइक्स होते हैं फेक या जो फॉलोअर्स होते हैं, तो वो आप लोग उनको करके देते हैं या वो किस तरह करते हैं? नहीं, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जब कोई हमारे पास बंदा आता है कि जी हमें ये सर्विस चाहिए, तो स्पेशली अगर वो बंदा मेंशन करता है कि हमें ऑर्गेनिकली चाहिए ना, अच्छा, तो ऑर्गेनिक चीज़ जो भी होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ओके। तो हम उनको बताते हैं कि अगर आपको ऑर्गेनिकली चाहिए तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको फेक चाहिए तो उस पर तो फिर कोई टाइम नहीं लगेगा, उसके लिए तो वो तो सेकंड्स में हो जाते हैं। आजकल ऐसे टूल्स भी अवेलेबल हैं जो कि सेकंड्स में हो जाते हैं। तो ये बंदे पे डिपेंड करता है कि वो अच्छा, क्या मुझे करना बताएं चाहता है। कि अक्सर लोग, जैसे आपने रिव्यू की बात की, कुछ लोग लाइक्स पे भी जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। नहीं इस पोस्ट को इतने लाइक मिले, ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, बिल्कुल। या इस अकाउंट को इस ब्रांड को इतने फॉलोअर्स हैं तो इसका मतलब है कि ये ब्रांड अच्छा होगा। बिल्कुल। लोग इसको भी देखते हैं ना, तो वो फेक भी हो सकते हैं। अच्छा, फेक फॉलोअर्स और लाइक्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं आपके अकाउंट को? बिल्कुल करते हैं। किस तरह? अगर फेक आपके पास फॉलोअर्स हैं, हाँ। ठीक है, तो आपकी मोनेटाइजेशन नहीं होती है। अगर आपके पास फेक फॉलोअर्स हैं तो आपके अकाउंट की मोनेटाइजेशन नहीं होगी, जबकि इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम और फेसबुक वो डिटेक्ट करेगा कि ये फेक फॉलोअर्स है, क्योंकि जो फेक फॉलोअर्स होते हैं वो रोबोट्स होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते। उस जो अकाउंट होता है उसकी पोस्ट पे इतने ज़्यादा कमेंट्स नहीं होते मैं हैं। वापस आऊँगी आपके पास कि ओके, इसके हवाले से फेक फॉलोअर्स और लाइक के हवाले से कि ये मोनेटाइजेशन भी है, लेकिन इसकी वेरिफिकेशन में कितना ये प्रॉब्लम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जो आपके एक्चुअल फॉलोअर्स या लाइक्स आपको आते हैं उसको इफेक्ट करते हैं कि नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। लितुन को मंगेवर को शांति ब्रेक कर लूँ, वापस रस्तानी की। जी, वेलकम बैक टू पखेर पुख्तनख्वा लिदुनकुम आसरा इकरा नासदा वखी से ढेर ज़बरदस्त खबर रवान दी हाँ खलक चिकम द सोशल मीडिया सर कार लरी दासी ची या खपल बिजनेस लरी या गिबानी एक्टिव दी एज अ सोशल एक्टिविस्ट दी ओ कागब सोती से बिजनेस की या से सेलिब्रिटी दी आगई द पारा या आग खलक चागी ऑनलाइन शॉपिंग की या आग ऑनलाइन खलक गुरी फॉलो की आगई द पारा ढेर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे। सो अब जब मैं ब्रेक पे जा रहे थे तो हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे कि जो अगर आप फेक लाइक्स या कमेंट्स या फॉलोअर्स ले रहे हो, ठीक है, तो ये आपके अकाउंट को क्या इफेक्ट करते हैं? मोनेटाइजेशन आपके अकाउंट की नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि क्या आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए भी ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आपका अकाउंट इसलिए नहीं वेरीफाई हो क्योंकि आपने फेक फॉलोअर्स या लाइक्स लिए हैं? बिल्कुल, ओह, बिल्कुल करते हैं इफेक्ट। अच्छा। और इसके अलावा अगर आपने फेक फॉलोअर्स के अलावा फेक लाइक्स भी आपने लिए हुए हैं अपने अकाउंट पे, तो वो भी वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ओके, अभी आते हैं मोनेटाइजेशन की तरफ। बहुत सारे लोग बहुत पूरी दुनिया में बहुत पैसे बना रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। आप देख लें, पहले सिर्फ था यूट्यूब, अब यूट्यूब से ज़्यादा पैसा दे रहा है फेसबुक, बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा हैं और लोग बहुत एक्टिव हैं इसके ऊपर। लेकिन अभी चीज़ ये है कि ज़ुबान की उसमें बैरियर्स हैं कि भाई अरबिक, इंग्लिश और हिंदी, बिल्कुल, ये 3 ज़ुबानें हैं जिसमें आपका फेसबुक मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन मैं ऐसे सिंगर्स को भी जानती हूँ जो पश्तो के हैं, बिल्कुल, उनके मोनेटाइज हुए में, बिल्कुल, कुछ के पश्तो के उर्दू के हैं, उनके मोनेटाइज हुए में। ये क्या सीन है? ये यही सीन है कि पहले ये चीज़ें होती थी, बैरियर्स होते थे, लेकिन अब बैरियर्स नहीं है। नहीं है। नहीं है।
तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको तो पता होता है कि इसमें बैरियर्स नहीं है और किस किस तरह से ये होता है, लेकिन अगर कोई आम बंदा है वो ये इस चीज़ में अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना चाहता है तो वो जाए फेसबुक हेल्प सपोर्ट पे। फेसबुक का जो सपोर्ट का सिस्टम होता है वहाँ पे जाके कांटेक्ट करें, वो आपको पूरा मेथड बता देते हैं कि किस तरह से इस लैंग्वेज में आपका अकाउंट वेरीफाई हो सकता है। तो इस तरह से नहीं, ये बैरियर तभी कुछ महीने पहले की मैं अपनी बात कर रही हूँ। हाँ, पहले ये था कि उर्दू का शायद इसलिए है क्योंकि हिंदी उर्दू में इतना फर्क नहीं है। बिल्कुल। फिर वो कह रहे थे कि नहीं, पाकिस्तान उन मुल्क में है कि नहीं हो रहा। और अगर आपको याद हुआ, अभी मेरे ख्याल में इसी महीने में, पिछले जो महीना गुजरा है पिछले साल, इसी में जब बिलावल साहब गए थे बाहर तो उन्होंने ये पॉइंट है कि मोनेटाइजेशन करें। तो आप ये कैसे कह रही हैं कि नहीं यहाँ पे मोनेटाइजेशन है? नहीं है, नहीं है मोनेटाइजेशन। वो डिफरेंट लोकेशन का भी सीन आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आपकी लोकेशन यूएसए की है और आप लैंग्वेज दूसरी यूज़ कर रहे हैं तो ये लोकेशन का भी सीन आ जाता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिसमें वो देते हैं कि ये लोकेशन है और इसमें सारी लैंग्वेजेस हो सकती है, क्योंकि यूएसए में जो भी फीचर आता है वो सबसे पहले यूएसए यूके में आता है। तो हाँ, इस तो वजह से ठीक है ना, पाकिस्तान में नहीं है ना मोनेटाइजेशन। लेकिन आप यूएसए का अकाउंट बना के तो उस पे हर चीज किसी का नहीं होगा यूएसए में, यूके में कोई, तो वो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। तो फिर ये है कि पाकिस्तान में अभी नहीं हुआ। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ कि पाकिस्तान में कोई आम, ये नहीं कि किसी बंदे को पता नहीं होगा। बिल्कुल। मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है। इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने पिछले महीने जाके ये बात की है कि भाई उनको पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं तो उसका जैसे उन्होंने बताया, मैं इसलिए चाह रही थी कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली आपका अगर कोई जानने वाला है तो वो अब्रॉड में बैठ के, या चाहे वो कनाडा में है, वो यूरोप में है, अमेरिका में है, वो जाके वो लॉगिन होगा आपके अकाउंट में, वो पोस्ट करेगा वहाँ से। तो फिर आपकी कोई भी ज़ुबान होगी तो आपको इनकम उससे आती रहेगी। ये एक चीज़ है, क्योंकि ये मुझे तकरीबन साल पहले हुआ था लैंग्वेज का। सो फिर मैंने जितने भी अपने व्लॉग्स चीज़ें बनाती हूँ तो मैं उर्दू में बनाती हूँ, तो वो एक चीज़ है। फिर आप फेसबुक के ऊपर भी आपका जो है तो वॉच टाइम है कि इतना आपको अगर वॉच टाइम हो गया है। अभी फेसबुक के ऊपर आपको ये जो रील्स होती है ना, शॉर्ट वीडियोस, इसके ऊपर आपको स्टार्स मिलते हैं। वो स्टार जो हैं वो आपके पैसों में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब वो स्टार जो हैं अभी तक सिर्फ अब्रॉड में ये लोगों के पास था, पाकिस्तान में नहीं था। ठीक है, तो अभी जो बिलावल साहब गए तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के पास भी अगर आप किसी की वीडियो लाइक करते हैं, कोई रील आपको पसंद आ गई उनकी, तो आप उस पर सेंडिंग कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा बाकी जो ऐसे ऐप्स हैं जिसके ऊपर आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जब जा सकते हैं लाइव और गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उस पर आपको सेंडिंग होती है। तो उनकी कुछ वीडियोज़ हैं जिस पे लोग आपको लाइक करके या सेंडिंग भी करते हैं। तो देखो इकरा, मुझे सब पता है, मैं सिर्फ कह रही थी कि इकरा को कितना पता है इसके बारे में। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि यूएसए और यूके वगैरह में आप कर सकते हैं। वजीर खान हैं कराची से। हेलो वजीर खान। ओके, सो अब मुझे ये बताएं कि इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन कैसे करवा सकते हैं, और वीडियो के ऊपर है और क्यों ड्यूरेशन के उसके ऊपर है कि मेरे ख्याल में फेसबुक के ऊपर मिनट से या 2 मिनट से 3 मिनट तक होना चाहिए या 1 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए वीडियो। तो क्या इंस्टाग्राम पे भी ऐसा ही है? इंस्टाग्राम पे ऐसा है और डिफरेंट। वजीर खान साहब दोबारा कॉल कर गए कराची से। हेलो अस्सलाम वालेकुम नजीबा। वालेकुम अस्सलाम जी वजीर खान संगे तासु खई जी सियात खरे खैर खैरियत अल्लाह शुक्र दे। मा दा खबरा कोला मा तासु अगर यो टॉपिक राखो वड़ो बबारा के कना چې दूसरा जुल्म ज्यादा कीगी लगा कना। हाँ जी जी, मा दा खबरा कोला چې دا لکه دوه وجوهات کې دي شي کنه، یا غیر سړی د مسلمانانو نوم بدنامه کوي یا د واپس کې د خلکو دشمنی کنه، غټ سړی باندې وس نه رسینو دا کار لکه کوي د لوکې نه لکه وباسي کنه. او ډیره ښه خبره. ها نو مطلب دا چې خاطر خبره خو کوئی نه، او مطلب دا چې خلک خواندان کمی نو دا چې اوس لکه د دې مجرم معلوم کینو په کار چې سخت نه سخت سزا ولورګي ولې زمونږ पाकिस्तान जिन्होंने किदा का दे पे यो दरवाजे साड़े रदन के बले उबासी लगा राजपथ दा डेर चली के ना। जी बिल्कुल जी, सही वाई जी। हां नो दा दसी पका दे लगा दल दी सड़ी ले 2 काला सजा 3 काला सजा वर की बजिल की बन की नो तो सनो हो लगा दा कार बयान कई ना, माशुमान को गलती नहीं है, मतलब दार दा को सपा मखलूक थे तो दूर मख च कम ने नो दा दुनिया बात रखा ना। और डेर ख पॉइंट सा सोचत के वजीर खान डेर ज्यादा मनना, थैंक यू वेरी मच तासु टेलीफोन ना। और बिल्कुल दा जमंगा च देनो प्रोग्राम मो तेरा हफ्ता च मंगा कड़ो द माशुमानो सारा चिकम
ज़्यादती की पागी की वड़ी माशुमानी में थे वागा माशुमान हम दी चिकम पकम कुरूनु की कार की दा यो टॉपिक मंगा लॉयर सर डिस्कस कोलो नो वज़ीर खान डी की ढेर ज़्यादा खबरों का गदा हुई छी भाई दा सेम के देशी ची द जमंगा सोसाइटी बदनाम होलो द पारा गना अगी दा से कारोनो की ची अगी की दा विशेरा दा दी कौम खलक या दी इलाके खलक या दी जबी खलक गोरा दा से जालिम दी या दा से नापोहा दी या दा से जाहिल दी यो अगी दा पॉइंट के खुदो ची कम चांस लरी दोम पॉइंट अगी दा की खुदो ची मे बी द मुशरानो द योबल सर दुश्मनी मेरे द लुयानो नो आगा चूँकि अगी बानी वस न रसीगी या आगी बदल आगा सूद पारा जमंगा द पख्तो यो मतलब ने कहना वही ची मेखा गुस्सा या मेखा दर्दे या गवा दर्दे नो दा कटे वाला वहा नो आगा दा से दे चले आगी बया कशरान माशुमान नो आगी नखपल आगा इंतकाम या आगा बदलाखली दा में वजह की दी ची द्रेम आगी डी पॉइंट दा खबरों का वज़ीर खान विल चे ज़्यादातर खलक चिदी आगा दा जुर्मुना ज़का कई ची इंसाफ पाकिस्तान के न मिलावीगी आगी हुई ची जेल तलाट शी दूर गच सूकू की गुनावत हुआ या जुर्म वत हुआ कि सूक दा जुर्म मुख्य आगीला पकार दे ची सजा वर कड़ी शी दा सजा ची नूर खलगू गुरी आगी भी अदा सी जुर्म वने की कना नो आगम डेरा जाता खबर ची बिल्कुल दा ची कल सजा न मिलावीगी गुनाहगार था नो ज़ाहिर खबर दा खलक भी बस लाड़ बो शुदा दा गलती बो को या दा गुनाह बो को बया या जुर्म बो को नासी खुम सजा न मिलावी की संग दी विच रिश्वत वर कवंदी या सिफारिश कवंदी ता सोच दा निज़ाम नहीं जोड़ शवे दा सी जुल्म ब सोसाइटी की रवानी और मखाल च वाकदारान ल पका दे उसे यो आम कस्ते कराचे न कॉल करे अगर तुम रख पॉइंट्स चिकम दी अगर रेस कल च दा दा खबरी दी नो तुम च पढ़ा लिखा कम च एजुकेटेड खलक दे कम च दा वाकदारान दी संग की देश ची पदी बाने न पुईगी जिदा संग के जो डेरा ज़्यादा मनाना वज़ीर खान थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो आप कह रही थी कि जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर आप मोनेटाइजेशन करवा सकते हैं, वीडियो ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? वीडियो ड्यूरेशन सेकंड्स में होनी चाहिए ना। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मेरा काम जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का है ना। अच्छा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मीन्स कि उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, उसको रैंक कैसे करवाते हैं। ये जो मोनेटाइजेशन वाला काम है ये जो है ये मेरा काम नहीं है ना एक्चुअली। अच्छा। तो मेरे काम में सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, इसको रैंक कैसे करवाया जाता है सर्च इंजन पे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इतना तो जो एक मतलब यूज़ करने वाला होता है उसको भी पता है, एक जो सोशल मीडिया यूज़र होता है उसको भी इस चीज़ों का पता होता है कि कितने फॉलोअर्स पे जो है मोनेटाइजेशन हो सकती है, किस अकाउंट की हो सकती है। जैसे कि कहते हैं अच्छा, ये मोनेटाइजेशन फॉलोअर्स के ऊपर भी है? फॉलोअर्स के ऊपर भी है। 10K फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हों तो मोनेटाइजेशन और होती है। ये जो वॉच टाइम है ये इंस्टाग्राम पे भी है? जी बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे भी होता है। लेकिन अभी आप कह रही ना कि सेकंड्स में वीडियो होनी चाहिए, लेकिन अभी तो उन्होंने कह दिया कि मेरे ख्याल में कोई 7 मिनट की भी आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। रील का जो ऑप्शन है वो है सेकंड्स में, जबकि जी बिल्कुल वीडियो जो पोस्ट वीडियो होती है उसका जो है वो मिनट्स में होता है। और जो आपको मोनेटाइजेशन मिलती है इंस्टाग्राम पे वो रील पे मिलती है आपको? रील पे भी मिलती है, उसके बाद फॉलोअर्स पे भी मिलती है। ओके, अच्छा ठीक है। तो जो आपकी एक्सपर्टी है उसके बारे में बताएं कि ये रैंक्स कैसे देते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है, ये बता दें। सबसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज जो कि वेबसाइट के ऊपर जो नज़र आ रहा होता है वो होता है, जबकि ऑफ पेज जो बैक एंड पे होता है वो सारी चीज़ें होती हैं। टेक्निकल में ये चीज़ें आ जाती हैं कि कोडिंग, जो वेबसाइट पे कोडिंग वगैरह यूज़ होती है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरीज में एसईओ डिवाइड होती है। और तीनों चीज़ों पे जब आप वेबसाइट पे काम करते हो तो तब आपकी वेबसाइट जाके, या कोई स्टोर होता है तो वो जाके ऊपर रैंक करती है। किसी भी ट्रैफिक कैसे लेके आते हो आप? ट्रैफिक के लिए सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल कोई भी स्टोर है ना, तो उसमें सबसे पहले आपने ये चीज़ें मेंशन करनी होती हैं कि कोई भी जो ब्लॉगर है या कोई भी आने वाला यूज़र है, ठीक है, उसको उसकी प्रॉब्लम्स आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो उसमें आप ये चीज़ें मेंशन कर रहे हो कि जो है आप इसको जब जो यूज़ करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए वेबसाइट। उसके बाद जो है उसमें कीवर्ड्स यूज़ होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, लोगों के लिए इजी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप जिस कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो उन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कितना है एंड उसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। फॉर एग्जांपल एक बंदा ग्रीन टी दे रहा है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में कहेगा ये स्लिम करता है, ठीक है, ये एक
टी बैग से आप जो है तो 10 ग्लास जो है वो ग्रीन टी बना सकते हैं, या ये चीज़ें कह रही हैं कि ये प्रॉपर होनी चाहिए तो जी, तब बिल्कुल। ट्रैफिक उस तरफ आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जब लोगों को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई मिलेंगी तब वो आपके पास आते हैं। ये एक रियलिटी है कि जब लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलती है तो वो आते मुझे हैं। इकरा ये बताएं कि अभी आपने अपनी बातों में ही कहा था कि आप फिर डिसाइड करते हो कि इसको प्रमोट कहाँ करना है, ठीक है? तो प्रमोशन कितनी कोई ज़रूरत होती है? मतलब अगर मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने उसके लिए बहुत अच्छा वेबसाइट बनाई, तो उसको आप प्रोडक्ट को देख के फिर आप डिसाइड करते हैं कि किस किस प्लेटफॉर्म पे इसको प्रमोट करना है कि नहीं, कैसे? नहीं, सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट को ये देखते हो कि आपने लेके कहाँ जानी है, मीन्स कि किस कंट्री को टारगेट करना है। अच्छा, तो यूएस से यूके में करना है तो आपको एड्स चलानी पड़ती है, क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन होता है। पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान में करनी है तो आपने कम्युनिटी देखनी है कि कौन से लोग जो हैं वो किस शहर के लोग और किस तरह के लोग, बेशक लेडीज़ हैं, मेन हैं, कौन सा जो है इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। देन ये सर्च करके और उस कैटेगरी को देख के आपने सर्च करना होता है कि आपको एड्स चलानी चाहिए, किस कंट्री में चलानी चाहिए, किस शहर में चलानी चाहिए। तो वो अच्छा, आप जो कि ये काम करती हैं, बिल्कुल। हेल्प आउट करती हैं लोगों को, बताती हैं कि ये करना चाहिए, तो आप लोग किसके लिए क्या सर्वे करते हैं, क्या आप लोगों का क्या होता है? कैसे आपको, अगर कोई आपके पास आता है ना कि ये ट्रक आर्ट है, ये मेरा काम है, ये मैं चाहता हूँ कि ये प्रमोट करूँ पाकिस्तान में, या इवन अब्रॉड, तो आप लोग उसके लिए क्या सर्वे करते हैं, किस तरह रिसर्च करते हैं कि भाई ये ट्रक आर्ट फ़लाँ शहर में या फ़लाँ ज़िले में या फ़लाँ मुल्क में, पश्तो उर्दू में मिक्स हो जाती है, मुल्क में चलेगा, तो वो फिर आप कैसे पता करते हैं उसके बारे में? मैं ऑनलाइन काम की बात कर रही हूँ ना। हाँ, तो ऑनलाइन की बात कर रही हूँ बिल्कुल। अभी। तो ऑनलाइन के लिए सबसे पहले ये है कि उसने कोई वेबसाइट बनाई होगी, कोई अकाउंट बनाया होगा, तो उससे हम वो लिंक लेते हैं कि आपने उसकी एक्सेस लेते हैं, अगर वेबसाइट है तो उसकी एक्सेस लेते हैं। उसके बाद उसके इनसाइट्स में जाते हैं ना, इनसाइट्स में जाते हैं और तो अगर कोई इनसाइट्स फ्रेश है, जी फ्रेश आपके पास आता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर आप कैसे सर्वे करते हैं कि भाई इसका प्रोडक्ट कहाँ हम इसके लिए जो है तो प्रमोशन करेंगे तो ये इसके काम आएगा? वो फिर कैसे करते हैं? जब कोई न्यू बंदा आता है उससे हम पूछते हैं कि आप कौन से कंट्री में या कौन से शहर में अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं या लेके जाना चाहते हैं, तो वो बताता है। फिर हम प्रॉपर टूल्स होते हैं ना, टूल्स में उसका जो है वो रिसर्च करते हैं, कीवर्ड डालते हैं कि इस कीवर्ड पे ये लेके जाना चाहता है और इस कंट्री में लेके जाना चाहता है, इस सिटी में लेके जाना चाहता है, तो क्या उस सिटी में ये प्रमोट हो सकता है? तो वो टूल सारा मतलब बता देता है कि इतने % चांसेस हैं कि इसमें ये प्रमोट हो सकता है, इसमें वो सारी चीज़ें उसके ज़रिए हो जाती हैं। ओके, शो पखली तरफ तो सुकुरु ची शाजिया कम चिकन हलीम नन तैयारी दागी से सूरत हाल दे जी। शाजिया टस टस आवाज़ वन रवान नुज़ो पोशम जिससे खोल गया। हाँ जी, जमा चिकन खो तैयार शो आगम दा मा रेशा ओकड़ दा से और दा उसमा दालू न पखोम दे के यो 15 शल मिनटों न बरनोड लगी चे दा आखिर के राशि कना चे दे के 15 मिनट पाते शी ब्या मूंग दे चिकन दे के आचू और दबा मिक्स को और दम बाने 15 मिनट पर दम आँच बाने के दू और ब्या बदा तेल दे के शमा ऑयल दे के मूंग दा लहसुन तड़का ब लगू और दे के शिन मर्च के बा आचू और ब्या जमा हलीम तैयार शी और दा मा रायता शीज़ुन हम कट के तासु गार्निशिंग पारा वे लियो और रायते द पारा वे लियो नो दा जमूंग सलाद हम तकरीबन तैयार दे दी किताब मुसलसल समसे वही दी किताब चा गुटी जुड़ी ने गुटी ने जोड़ शी और लान देना वो लगी जगह चे लान दे वो लगी काना ब्या आगा चे स्मेल तो राजी चिमा सर खबर के समसे वा कना उस बहुत सोजी बे बतामाती चिता तामा सर खबर कोले ने जितने राजक ये उन सजीगी और गुटले बना जोड़ शी जगह चे देखी गुटले जोड़ शी आगम बद लगी और गुटली तमंगा वाई गोटे हाँ गुटे जोड़ शी नो आगा बद लगी काना और चिलान दे वो लगी नो आगा स्मेल ब्या बेकार उस वजी का ना ब्याटो सालन दा शी उनदा मुसलसल बदी किताब समसे वहे दा ओम न लगी और दे की गोटिम जोड़ी निशी। आओ जी सही दा। चलें जी, अगर आपको चिकन हलीम पसंद है कि नहीं पसंद मुझे बताएं। नहीं, मुझे हर चीज़ पसंद है, मैं हर चीज़ खा लेती हूँ। अच्छा, तो फिर खाने की बात आ गई। अब मर्दान से आप पढ़ रही हैं, नौशहरा में आप रहती हैं, तो वहाँ पे कचालान की जो अचार है और जो लोबिया बहुत मशहूर है, तो आप हमारे लिए क्या आई हैं? मैंने खुद नहीं खाया है एक्चुअली, मुझे खुद नहीं पता है कि ये क्या होता है। चलें जी। मैंने 4 सदा के चावल खाए हैं, हमारे पंजाब में उसको कहते हैं खिचड़ी।
वो अच्छा। 4 सदा चावल जो हैं वो मैंने खाए हैं। आप जब उसके बाद- जाएं ना तो आप मुझे नहीं लग रही हैं कि आपने 1 साल गुजारा है, आपने गुजारा ही नहीं, आप ऐवी बोल रही हैं। आप, मुझे लगता है कि आप आई ही फैसलाबाद से हैं। नहीं नहीं, मैं फैसलाबाद से नहीं आई हूँ, मैं नौशहरा से हूँ। क्योंकि ना आपको उसकी लैंग्वेज के बारे में पता है और आपको कचालान के बारे में नहीं पता, तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ। ये ऐसी एक चीज़ है जैसे चारसद्दे की जो चावल है ना, जो खिचड़ी आप कह रही हैं वो है, तो ऐसी एक चीज़ है। और आप कह रही हैं आप 1 साल से रह रही हैं, आपको पता ही नहीं कि क्या है। अभी लिदर को मंगो से ब्रेक तरफ तजु वापस रास्ता की को बखैर पख्तूनख्वा से। जल्दी कर लें, जल्दी कर लें, क्वेश्चन के पीछे रखें। जनाब वेलकम बैक टू पखैर पख्तूनख्वा। लिदुन को स्टडी मशी ज़िली बिया पखैर पख्तूनख्वा था। लिदुन को इकरा खुमुंग सरना सवागी सरमंग खबरों की चिलक आगा एज अ स्टूडेंट खो आगा खपल सबक कम हुई खो आगा आगी सरा सरा खपल कार की जान द पारा हम और दागी द कार फ़ायदा आगा नूर खल को हम दा दा यो डेरा जाता खबर चीज़ मंगा जवाना उमदास यो जवान मास्टर उस प्रोग्राम के नास्ते च पखपल आगा द मेडिकल स्टूडेंट दें वो आगा खपली सोसाइटी द पारा कार की आगा हेल्थ वाली सरकार की आगा द जवानानो द पारा कार की आगा द एजुकेशन वाली सरकार की। सो अक्सर मंगा दा सिगुरु कना चिकम का सबक कोई स्टूडेंट आगवी ची भाई मां सर खबरी म कवे जे जो पजन की बल कार कोई नहीं सिर्फ सबक है नो दा द्वारा स्टूडेंट ला मंग सर नास दी सर मंगा खबर है को मां सर जनाब ना से सभी नजीब जी स्टडी मशी जी वेलकम। थैंक यू सभी नजीब सास पे खबर सर ताल्लुक जी एग्जैक्टली तो आप खास पे ताल्लुक खास पे खबर ये कना खास पे खबर जी खास चिकअप मैन पे खबर दे पेशावर सदर रजा वज़ीर हाइशिम जी डेर खा सभी दारा तो वाई चे दखपल स्टूडेंट लाइफ रात वही सबक कम जने देवेली उस मेडिकल कम जने तासु कवे एक्चुअली जमा चिकम दे 8 क्लास न वज़ स्टार्ट ऑफ हम दे प्राइमरी 8 क्लास न चिकम दे जो कैडेट कॉलेज रसमक न सबक वे दायो आर्मी चिकम दे यो इंस्टीट्यूशन हो बिया चिकम दे 8 न एफएससी पूरी चिकम दे मा कैडेट कॉलेज रसमक न वेले सबक बाकी न फर्दर चिकम दे क्योंकि मतलब द फैमिली साइड ना मोर जमा खपलम चिकम दे मेडिकल फील्ड से डेर काफ़ी शौक हो नो मा चिकम दे बिया फर्स्ट चीज़ मा कम एडमिशन हो मा आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो बिया मा सो 4 मंथ्स पर आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी की चिकम दे कंटिन्यू सा तो बिया थ्रू एचएससी चिकम दे जमा स्कॉलरशिप हो आगा चिकम दे पर शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के बिया चिकम दी जी आगा मा शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज जो उनको रिसेंटली चिकम दे 4th ईयर MBBS स्टूडेंट है और शेख ज़ैद यूनिवर्सिटी ना और चिकम दे वर्चुअली आई एम ज्वाइनिंग एज अ मतलब चिकम को मतलब यो दी वर्चुअल सोसाइटी आगा खान ने चिकम दी जी हमारी रिसर्च वर्क आगा खान ने दी और दमा चिकम मेडिकल एजुकेशन ने दैट इज़ फ्रॉम द शेख ज़ैद यूनिवर्सिटी। हाँ दारा तो आई चे उस राजू दा सा सबक दे अक्सर माऊ ये मेडिकल ग्रांड फील्ड दे आसान दे ठीक था ब्या अक्सर मंग स्टूडेंट्स गुरु लक उस इकरा चिरागल दनो इकरा बीबी चिकम दा पखपलम स्टूडेंट दा 3rd ईयर दिस तासो बिल्कुल नो आगा हम लग्या दे कार की एज अ सोशल मीडिया मैनेजर सईदा अगे सम खबरू के सासु गुंदी सासु फील्ड हम ग्रांड दे मेडिकली द पारा ज्यादा स्टडी का वंदी गना नो सोशल एक्टिविटीज तरफ तसंगा इंस्पायर शुई संगा रागे कला और सुना टाइम की जी बेसिकली चिकला जमा मतलब एफएससी जमा कंप्लीट हुआ नागे न बस चिकम संगता समा स्टार्ट किसे करू कुछ दागा मतलब नॉर्मली चिकम दी आर्मी इंस्टीट्यूशन हो नागा टोटली मुंगा बॉन्डेड हुआ चिकम दी सोसाइटी और मतलब दे के बिल्कुल इन्वॉल्व की दीने शो ब्या आफ्टर एफएससी चिकला जमा मेडिकल फील्ड के एडमिशन शो ब्या दागे ने चला मेडिकल फील्ड दास जॉब रन्स दी मतलब आगे के तो गोरे नस्ता रिलेटेड चिकम खलक थी आगे तो गोरे आगे बाने मतलब मेडिकल फील्ड के ऑलमोस्ट फोकस चिकम दे खल को बाने दे नो चिकम पर सोसाइटी की चिकम लेकिंग जो मखबल अदा कंसिडर कोल मतलब दे के ज़कार कोलिशम और अगर लेकिंग बुझता तो एम चेस संग मतलब नन सबक चिकम दे द टोल न डुम्बे जमुग ये सोसाइटी पैशन बेनेवलेंट सोसाइटी नो पेशेंट्स की चिकम दी जी तास्तो पता ऑलरेडी उस नन सबदा से थेरेप्यूटिक्स चिकम दी सो तो वही इंस्ट्रूमेंटेशन दी ची आगा यो पेशेंट चिकम दी आगा निशी एफर्ट कोली बल 10 थेरेपीज दी ची आगा चिकम दे मतलब दुमरा कॉस्ट इफेक्टिव दी ची आगा चिकम पेशेंट्स दी आगे फाइनेंशियली दुमरा नी स्टेबल ची आगे मतलब चिकम दे आगे एफर्ट की नो आगे की दायो गट ले को मतलब मखबल पर्सनली दा चिकम दे एक्सपीरियंस करो ऑलरेडी दी की चिकम दे मुझसे सोसाइटी प्रेजेंट चिकम पेशेंट बेलेंस सोसाइटी दा ऑलरेडी प्रेजेंट हो सेकेंडली चिकमो जी ब्लड डोनर सोसाइटी द ब्लड डोनर सोसाइटी पर लिहाज सारे चिकमो द ब्लड डोनर सोसाइटी एज को प्रेसिडेंट मा ज्वाइन को नो जी द टोल न डुम्बे खबर खुदा रे मतलब ज़्यादा कर चे माफ कम कतलू दुमरा कैजुअलिटीज़ दी आगे मतलब ब्लड अरेंजिंग ज़्यादा कर चे कंपेशन दी मतलब इवन ऑन बेड दागी डेथ उशी द ब्लड द कमी द वजह मतलब अगी दागा मतलब चकम दागी
एक्टिवेटेड टाइप ته هغه ټیم چې کوم دی هغه ته هغه بلډ نه پرووایډ شوی نو مونږ چې کوم دی یو دا ما غټ لایک وکړو خاص کر میډیکل فیلډ مشتاق اورکزئی دی جی هلو السلام علیکم میم وعلیکم السلام مشتاق ستړي مشي څنګه تاسو ښه شکر دی الله کرم دی بس مو سوشل میډیا چونکه مو د یو بیکورډ ایریا سره تعلق ساتو ضلع اورکزئی هغه کې ډېر مختلف ستونزې د ایجوکیشن هیلث او سره سیګنل نو هغه تاسو اکټیویټي ګورو د خلکو مسایل او د خلکو आवाज سوشل میډیا باندې ګورو نو مو اپریشیټ کوو خوش کوم ډیره مننه دا راته وایي مشتاق چې تاسو په خپله سوشل میډیا باندې کوم پلیټ فارم یوز کوئ لکه تاسو فیسبوک یوز کوئ انسټاګرام ټویټر یوټیوب څه مو فیسبوک میم ټویټر انسټاګرام داندغه کوو بیا تاسو له ویډیوانې ګورو خو مو لکه تاسو مولا لک ټایم راکړو چې مو تاسو یو اند ریکارډ یو انټرویو دغه کوو ښه زه انټرویو تاسو له درکم داسې وایئ صحیح ده بهرحال ثانک یو ویری مچ ډیره زیاته مننه ثانک یو ویری مچ مشتاق اورکزئی موږ ته کال کړو او مشتاق صاحب سره ماته زه انټرویوز پروفایل انټرویوز ماته نشي یاد چې ما کله ورکړي ما خلک ټول ژوند کې چې تک یو ځل هغه نشته دی صحیح ده نو زه اکثر چېرته کې ځم نو زه خپل پروجیکټ باره کې خبرې کوم یا څه ټاپک باره کې خبرې کوم دا زما المیه ده ما اوس پروفائل انٹرویوز نہ ورکم تو بھی ہم تھینک یو ویری مچ تاسو کال کو اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں فیس بک ساری یوز کر رہی ہوں لیکن جہاں سے انہوں نے کال کی وہ کہہ رہا ہمارے پاس انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ بہت ساری چیزیں لوگوں کو ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ بجلی جاتی ہے آپ باہر جائیں گے ابراڈ تو آپ کو لگے گا اچھا بجلی جاتی بھی ہیں لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے اس طرح کی سینیں ہاں تاسو دا بلڈ سوسائٹی خبر ہوگا نا ایگزیکٹلی نو بیا فردر چې کوم دی بلډ سوسایټي پکې راغلی بیا تھرډلی چې کوم دی ما ایز ا ریسرچ ورکر جوائن کړی دی په اونکولوژي کې اور زموږ ارګنایزیشن دی ګلوبل نیو ساينس ارګنایزیشن چې بیسیکلی جرمنی هیډ کوي اور دا غي ایز امبیسډر ز کار کوم نو دا غي جی یو مین داري چې مطلب الریډي زموږ چې کوم مطلب سوسایټي دا اور چې کوم لیمنز دی نو دا غي په دا یو ټرم جوړ شوی چې کینسر از لیته چې کینسر یو کس یو ځل چاته کینسر شنو دا الټیمیټلی چې کوم دی هغه ډیث دی نو دې باره کې مونږ کمپین شروع کړل چې مطلب کینسرس چې کوم دی دا الموسٹ 65% چې کوم دی نو دا پریونټیبل دی ښه نو په دغه باندې چې کوم دی بیا په دې په بابت کې چې کوم دی مونږ مختلف سیمینارز وکړل اور مطلب دې سره ریلیټډ بیا په 2000 زبا خبر ته راځم تاسو وو کې ته بدل ته اوس یو بریک ولګي صحیح دی صحیح ده اور زبا تاسو نه دا تاسو کوم چې کوم تاسو د بلډ ډونر سوسایټي والا خبر وکړه یو خو زمونږ تاسو سیمه چې کوم د کوم وخت ته سټوډنټ ولې تا خبر کول نو هغه وخت تاسو چې زمونږ سیمه چې کوم ده هغه ترګړی لاندې وا دا سیرز بنو چې دوه درې دماکي و پاکستان په کې پی کې خیبر پختونخوا کې یا پیښور کې نه کې دی یا مردان کې یا ثوابه کې دا یو سلسله بل زمونږ ډرایورز چې کوم دي د اغیم یو مسله و چې هغه اکسیډنټس ډیر زیات کیږي صحیح ده دغه یو وجه ده بل دا چې ځینې بیماریاں دي لکه تلیسیم یا داسې ځینې بیماریاں دي چې هغه لپاره د بلډ ډیر زیات ضرورت دی صحیح ده بالکل اوس تاسو راته وایي چې زیاتره تاسو دې دپاره څه کوئ تاسو څه کیمپس لګوئ بلډ راټولوئ بیا د بلډ بینک ډېر زیات ضرورت دی چې هغې کې بلډ تاسو وساتئ جی صحیح ده جی نو دغه یو ډېر زیات امپورټنټ خبره ده نو تاسو راته چې اول د دې ځای نه ته شروع کړئ چې تاسو دا بلډ څنګه راټولوئ یا څنګه به راټولول شروع کړي دي د بلډ بینک راته وایي چې دا صحیح انتظام دی چې هغلته کې تاسو ځینې ګروپس دي بلډ ګروپس دي چې هغه نه میلاویږي هسې که د هغه خدای مکه اکسیډنټ وشو یا زخمي شو یا هغه ته بلډ ضرورت نو ډېر په ګرانه میلاویږي جی د ټول نړۍ خو چې کوم دی مطلب ایز ا سټوډنټ چې کوم دی مونږ کار شروع کړو نو د ټول چې کوم د دې اچھا یو منٹ کال لیجیے مسرت بی بی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام مسرت بی بی ستړي مشي څنګه تاسو ښه الحمدلله ټیک ټاک دي دوړه خو ملمان راغلي دي سبینه تاسو کوم چې دا دوره مهنت دی کوي نو سټډیز ته کوم ټایم ور کوي سوره ټایم ور کوي او دا چې کوم تاسو وسو لوچ بلډ والا کوي ډیر ښه کار کوي دو مطلب دا ایکسټرا چې کوم ټایم دا ویسٹ کوي نه दूसरा इकरा से एक पूछना है मैंने जी इकरा से पूछें प्लीज अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अच्छा मैं ये पूछ रही बहन कि अगर ये आपने इधर आप हैं पंजाब की आपने KPK में पढ़ाई की तो आप PK के बारे में वहाँ जाके या यहाँ पे क्या कह सकती हैं कि किस तरह का पाया आपने है तो पाकिस्तान है सारा खूबसूरत
मैं भी आप दोबारा रिपीट करेंगे अपना सवाल कि आप केपी में रह रही हैं तो क्या? केपी के में रह रही हैं और हैं पंजाब की आप। हाँ तो आप इसके बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके लोगों के बारे में भी बताती हैं ताकि वो एक पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान नजर आए। अच्छा नहीं, आप देखें, आप उसको आप ना जब की चालाकी मैंने पकड़ी है, वो रहती जो है वो हैं पंजाब की और वो रहती हैं केपी में, तो आप चाहती हैं कि केपी की तारीफ करें, पाकिस्तान की क्या मतलब क्या आप केपी की तारीफ करेंगी? ऐसे आपने उसको जो गोल मोल कर दिया, वो सर मैंने पकड़ लिया आपको, आप चाहते हैं कि केपी भाई है ना, पंजाब हो, केपी के हो, सारे बहन भाई हैं। ठीक है, एक खूबसूरती जो बयान करेंगी जैसे बहन भाइयों की होती है, तो वो तरह करेंगी जाके हम बहुत खुश हों। दुआएं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दुआएं देंगी आपको मुसरत, आपने केपी की तारीफ करनी है भाई। थैंक यू मुसरत, थैंक यू वेरी मच जी। तो आप केपी की कुछ तारीफ करें ताकि मुसरत खुश हो जाए। वो कह रही हैं आप आई हैं तो फिर आप बताएं कि जब मैं पंजाब से आई हूँ तो केपी में ये चीज़ थी, तो कचालान के अचार आपने नहीं खाया, लोबिया आपने नहीं खाया वहाँ का, और पशु आपने नहीं सीखी, और तारीफ बताएं, तारीफ करें ताकि वो खुश हो। नहीं, केपी बहुत प्यारा है, मैंने बहुत ज़्यादा सुना था कि नॉर्दर्न एरियाज बहुत प्यारे हैं ना। हाँ। उसके बाद मैंने कलाम गई मैं, वहाँ पे जाके मैंने देखा कि वाकई में जो चीज़ें बताई जाती हैं कि केपी इतना प्यारा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यारा है। उसके बाद केपी के जो लोग हैं वो बड़े मतलब मेहमान नवाज हैं। ओके बस मुसरत खुश, ज़बरदस्त। ओके जी, आपसे उन्होंने सवाल किया छे तो दुमरा डेर मेडिकल लगमगा शुरू की हुई डेर ग्रांड देने बैठ दोना सोशल एक्टिविटीज़ के हुई सबक तो पारा टाइम मिलावीगी आप जी एग्जैक्टली दा जकम मुंगा दा कार को कना दा बेसिकली जमुंगा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड टोल कार दे, और सेकंडली चकम दा मतलब मेडिकल फील्ड द बाहर ना चकम दागे यो एनवायरनमेंट जोड़ शवे डेर ज़्यादा ग्रांड एक्चुअली जखपल दा बिलीव कोन च मेडिकल फील्ड के टोल कंसेप्चुअल स्टडी दा, और कंसेप्चुअल स्टडी थ्रू सिर्फ द बुक्स ना दा आगा चकम दे स्टा थ्रू वार्ड रोटेशंस दी ता चकम दे खपल सोसाइटी के इवन जम पकोर की चकम दे मतलब चे 10 पर्सन जी करना पागे कि चकम दे 5-6 को चकम दे सब बदे मेदी मरीज है, सब चकम दे अच्छा तब किडनी मसले नदा शिजुना दखपल एनवायरनमेंट ऑब्जर्व सुख बरडांदे सुख बकाणी एग्जैक्टली नदा शिजुना ऑब्जर्व कोल और बिया चकम दे आगे बाने मतलब एज अ स्टूडेंट आगे बाने खपल चकम दे और रिसर्च टाइप कोल चे दा मतलब ख्याल कवे खादी तास बाने रिसर्च ने कोई ता थ्रू रो मामियो चाची बो खुशहाली चला कोर की चकम दे नो डॉक्टर से जी मुफ्त इलाज की तास बाने खपल रिसर्च के राजू सासु टॉपिक ते चकम दास द ब्लड डोनर सोसाइटी खबर कवे नो दागी बारे के रातो ची पारा ब्लड संगरा टोलवे दासी खलक अगीब अवेयरनेस वर्क की अगीब ब्लड वर्क की और दासी ब्लड ग्रुप अगब न मिला पास आना बानी और द ब्लड बैंक से इंतजाम दे द टोल अडुम्बी खोजी मुंगा चकम दे मतलब डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस सर पे कोलैबोरेशन के इवन पंजाब के केपी के मुंगा चकम दे मतलब अगी सर पे कोलैबोरेशन के डिफरेंट चकम ब्लड डोनर कैंप्स या मुंगा चकम दे अरेंज को नो अगा चकम दे मुंगा जान सर ओवरऑल यो ब्लड बैंक सातु, और सेकंडली चकम दे मतलब सुमर जमुंगा मेडिकल कम्युनिटी दा मेडिकल स्टूडेंट्स थी नो द अगी चकम दी जी मुंगा यो लिस्टिंग करे दे। हां अगर लिस्टिंग की मुंजी दा करे दी चे मतलब द अगी चे सुमर मेडिकल स्टूडेंट्स दी द अगी ब्लड ग्रुप द अगी चकम द अगर टेस्टामनी कैपेसिटी द मतलब जो चकम ब्लड दी दा डोनेट कोल वाडम न डोनेट कोल वाडम और बिया द अगी कॉन्टैक्ट्स नंबर मुंगली कली दी जान सारा नो द मुसर द हर यो मेडिकल कॉलेज चकम दे द यो लिस्ट रोती जी डेर खा नो दे की चकम दे और दागी कांटेक्ट नंबर और बिया बागी की चकम दे दागी टेस्टामनी कैपेसिटी में चकम मुंग वेलिंग नेम द टू नंबर चकम दा मुंग मेडिकल कैंप्स लगाऊ न दा मुंग चकम दे मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लगाऊ और चकम मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने लाओ यूनिवर्सिटी पेशावर यूनिवर्सिटी शो अब्दुल खान यूनिवर्सिटी शो दा चकम नूर चकम सुमर जम तालीमी दारी दी नो पदे के मुंग लगाऊ नो दा चकम दे मुंग सर यो ब्लड बैंक को लेको और दा ऑलमोस्ट चकम दे मुंग सरा द मतलब डेर काफ़ी लेवल बानी चकम दे मतलब इन केस हर यो कैजुअलिटी हुई नो आगे चकम दे दागी पारा दुमरा मुंग सर कैपेसिटी से चेगा कोप अप की हां और चिदाकम जी ऑन द स्पॉट ते चला कम फॉर एग्जांपल यो मतलब दुमरा ज़्यादा कैजुअलिटी ना दिया सर्जरी दा पारा पकार दे नो दा चकम दे ऑन द स्पॉट चकम दे मुंग ब्लड बैंक ने यूज़ को हां अगर जी मुंग चिदा संग तास्तमा खबर हो चिदाकम मुंग सर लेस ती नो अगर चकम दे मुंग आर यो स्टूडेंट मतलब डिफरेंट चकम दगरी मुंग सर मीडिया सेंटर दे नो अगर मुंग कॉल्स को अगर स्टूडेंट्स मुंग रागवाड़ू और चकम वेलिंग दी और चकम दी ऑन द स्पॉट चकम दी ब्लड डोनेट हुई उस डेर खलक वही विन नवर कुम जब कमजोर है शमौदा दे जिन खलक बिया डॉक्टर जा खबर की जमा प्रोग्राम की दा खबर कर जी हर शपग में बस एग्जैक्टली बिल्कुल ब्लड वर्क उन पकार दे और द विनी मकदार सुमरई आया तासु आगी एचबी तगोरी दागी मुताबिक आगी ने बिया ब्लड अखलई और जिन टेस्ट न डी जरूरी दी के ना सही है से कि उम द ब्लड दवजिना हेपेटाइटिस चलो या नो दासी बीमारियां नी विच अगर द ब्लड दवजिने चिदे ट्रांसफर कीगी नु दे द पारा तास कवे
مونږ جی د ټول نړۍ خو چې کوم دی مونږ سره انسټنټ چې کوم دی د انسټنټ لیبارټریز دي مونږ چې کله څومره مختلف د څنګه تاسو مونږ وی چې مونږ د چې کوم کیمپس لګو نو دا چې کوم دی مونږ سره انسټنټ لیبارټری دي اون د سپوټ چې کوم دی موستلی چې کوم دی هیپاټایټس اور نور چې کوم د لیتل یا څه مطلب هیپاټایټس ډیزیز دی یا چې کوم د وایرل ډیزیز دی دا غي د لپاره چې کوم دی مونږ مطلب سکرینینګ کوو نو خو مونږ جی اون د سپوټ وکول دا چې کوم د بلډ ډونر سایډ دا او چې دا کوم مونږ انویټیشن ورکو چې کوم مطلب سټوډنټ مونږ غواړي یا کیژوالټي ته یا سړي نو هغه چې کوم دی چې مونږ عام لیبارټری نه چې کوم دی اون د سپوټ نن سبا چې کوم دی ایون ودین 10 منټس چې کوم دی اوورال سی بی سی اوورال چې کوم سا پی سی آر ने अलावा हर टेस्ट چې کوم دی جی पॉसिबल دی इकरा को भी इस डिस्कशन में शामिल करते हैं। इकरा जैसे कि अभी कह रहे हैं कि नजीब ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम जब ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को अपील करते हैं इस तरह तो इस तरह के हॉस्पिटल्स भी होंगे, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगे जो आपके थ्रू तो अब जैसे कि ये चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन के लिए अपील करें बिल्कुल या इस हवाले से बात करें तो उसके लिए आप क्या हेल्प कर सकते हो? इसके लिए हम ऑनलाइन भी एक वेबसाइट वगैरह पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं ब्लड डोनेशन की तो उसकी ऑनलाइन जो है एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे एड्स वगैरह चला सकते हैं। आपकी सोसाइटी जो है उसके पेजेस भी होंगे फेसबुक पेज पे बिल्कुल तो आप उस पे एड्स चला सकते हैं ताकि अच्छा, अब ये यहाँ पे वो सवाल आता है कि अब ब्लड डोनेशन तो कहीं पे कोई भी चला सकते हैं तो इसके लिए या इसके लिए भी ख़ास आप लोग फिर रिसर्च करते हैं और पूरे एक सर्वे करते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसको पिच करना है? नहीं, ब्लड डोनेशन तो कोई भी कर सकता है, डोनर कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले यही चीज़ बेस्ट होती है कि स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करें क्योंकि आप ब्रॉड जब जाएंगे तो फिर आपको खुद भी नुकसान होगा, इसलिए पहले छोटी चीज़ को ट्राई करें। जी ब्लड देने विनी द वर्क वनो द पारस उम्र दे दी उम्र न दी उम्र पूरी ठीक था ब्लड वर्क की दी उम्र न वर्क की जी एग्जैक्टली नॉर्मली च कम दे ना मतलब फील्ड के द 16 ऑनवर्ड च कम दी इजीली वर्क पॉलिसी मतलब 18 च कम दी और लिमिट थे और द 16 च कम दे मतलब द 16 मिनिमम 16 और च कम मैक्सिमम दे मैक्सिमम ऑलमोस्ट 40 पूरे मुझे कम दे एक्सेप्ट को 40 ना बाद च कम दे अगर बिया दागो च कम सॉर्ट तो दागी अगर मतलब फिजिकल एक्टिविटीज तो गुरु दागी च कम मतलब मेडिकल दागी फिटनेस गुरु च मतलब इन केस यो कस्ते 40 च कम दे हेल्दी दे ना सही कम दे बिया सही दा सभी नजीब च कम दे आगा एजुकेशन वाले सर हम कारुना की एक्टिविटीज की सेमिनार्स दी कॉन्फ्रेंसेस दागी वारा की हम तपोस को ये वर्क को निशान दमालू वापस रासानी की को बखैर पख्तूनख्वा से जनाब वेलकम बैक टू पखैर पख्तूनख्वा लिदुन को स्तड़ी बशी उजली बा पखैर पख्तूनख्वा था जनाब सभी नजीब सरना से जनाब आगा द मेडिकल स्टूडेंट दे सलोरम काले दे खुदा गे सरा सर आगा सोशल एक्टिविटीज़ चिकम दी आगम की अगे सरा इकरा बीबी नासर इकरा बीबी चिकम दागा सोशल मीडिया मैनेजर और दागी नूर इंटरनेट सरा वेबसाइट सर चिकम दी कम खालिक बिजनेस की नो आगे की आगा लिखा दे दखल को सरा हेल्प की पखपला चिकम दा अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था सो वापस राजमा साउथ तरफ था और अगर दारा तो वही द ब्लड तासु संग वही यार ब्लड चिकम दिया खुद मा फील्ड सर थड़ल दे करे तासु एजुकेशन हवाली सर हमारी जनी जनी माशुमानु सर रस्सी कोई दागे बारे की रात तो भाई जी फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कम दे मतलब ज़्यादा कर जमुगे चकम दा सेमिनार्स रिलेटेड जिंदा चकम न्यू मेडिकल स्टूडेंट्स या की द पार रिलेटेड हां उस जी मेडिकल फील्ड की चकम दे करना जी द आगम फोकस थे सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स एग्जैक्टली जमुगे उस मतलब मोस्टली मुंगर को मेडिकल स्टूडेंट द पार हां और जगह जगह मतलब जमुगे रिलेटेड फील्ड सर दी करना हां तो नडुंबे खुदारी मतलब दा यो ट्रांजिशन ही फ्रॉम एफएससी टू इन मेडिकल फील्ड ठीक नो चकल जमु न्यू स्टूडेंट्स राजी करना नो आगे देर ज्यादा चकम दी डिफिकल्टीज फेल की द टूल नडुंबे खोगी की दारी छे मतलब द टूल नडुंबे द मेडिकल बुक सिलेक्शन तो मतलब द यो ईयर दे मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के जॉइन कई नो आगे चकम मतलब कम बुक्स पे यूज कई कम कंटेंट रिलेटेड चीजों न दिन आगे चकम दे आगे सर मुंगा सेमिनार्स अरेंज को वगी था चकल न्यू चिकम मतलब एडमिटेड शी और वही बारे की चिकम दी अगली लमु गाइडेंस वर्क को बिया फर्दर चिकम दे चिकम एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशंस दी एग्जाम द पारसंग प्रिपरेशंस दी टेस्ट द पारसंग प्रिपरेशंस दी पदे की रिलेटेड कम और द टोल गटा खबर है चमुंगा आगे की चिकम दे ज्यादा कर स्टूडेंट्स फुल सोसाइटी के बिया चिकम दे जान सारा अखलू जी
هغه د بار چې کوم دی مختلف یو ټیسټ ته هغه مونږ ارینج کوو او بیا هغه بس انټرویوز کیږي او هغه چې کوم مونږ خپل چې دا کوم فیلډ بیسیکلی مونږ چې کوم مطلب اوس زموږ فورث روان دی بل فائنل ایئر دی مونږ فارغ شو نو په دې کې مونږ جی غواړو چې مطلب دا چې کوم مونږ د سوسایټي سٹارټ کړی دا چې دا کنټینیو وي نو دین مونږ نیو ریکروټمنټس کوو نیو چې کوم سټوډنټس څومره راځي نو هغه چې کوم دی مونږ سره دې کې انوالو کوو دلته کې تاسو بایو کې لیکلي چې تاسو یو سوشل اکټیویسټ تاسو د ماشومان ایجوکیشن حواله سره هم څه اکټیویټیز کوئ زموږ چې کوم ټول نړومبې خو چې کوم دا چایلډ میریجز دي هغې باره کې مونږ ستاسو یو بل ارګنایزیشن دی ګروپ هغې دلته آی ګیس هغې مخکې چې کوم دی سیګمنټ شوي دي عثمان خان افریدي اور هغې چې کوم دی جی بالکل بالکل نو تقریبا کال یو نیم مخکې ایگزیکټلی هغې دلته چې کوم دی دا هغې سیګمنټس کړو خپل نو هغې کې چې کوم دی مونږ جی سیمینارز په دې ریلیټ باندې کوو چې کوم زیات کر زموږ چې کوم لیس ډیولپ ایریاز دي بلوچستان سایډ شو جی اور زموږ چې کوم ایون په کې پی کې داسې ایریاز دي چې هغه مطلب هغه اوس مرج شوي دي قبایلو کې د ډېر وخت پورې دا رواج خو اوس خو هغه مرج شوي دي کې پی سره جی ایگزیکټلی نو دغه چې څومره چې کوم مطلب بیکورډ ایریاز دي نو هغې کې چې کوم دی موجوده سیمینارز کو دی ریلیټډ اور چائلڈ ایجوکیشن اور چې کوم چائلڈ میریجز دي هغې باره کې چې کوم دی سیمینارز ټول زموږ سیمینارز کوي د چائلډ ایگزیکټلی او بل چې کوم مطلب اباؤٹ لائک چائلډ ایجوکیشن باره کې نه دی چائلډ ایجوکیشن باره کې جی هم دی چائلډ ایجوکیشن باره کې جی موږ سره بیا ډیفرنٹ سوسایټیز چې موږ ته فنډینګ کوي هغه چې کوم دی فورن هم پکې شته دي او د پاکستان کې خپل موږ سره ډونرز شته دي نو هغې موږ ته فنډینګ کوي او بیا چې کوم مطلب دا چې کوم سر هیلپ کوي زر راته سیګمنټ ختم دی سر هیلپ داري جی هغې چې کوم مطلب بکس دي هغې ایډمیشن دي په سکول کې د هغې چې کوم څومره ریکوایرمنټس اسٹیشنری ریکوایرمنٹس دي د هغې فیس دی थैंक यू थैंक यू इकरार बहुत शुक्रिया आने के लिए जनाब शाजिया थैंक यू वेरी मच चिकन हलीम तैयार शो او جی تیار شو دا چکن حلیم او دا رایتا رایته دی سره او دا زبردست دی خو مونږ دی وته وګی کړو اوس خو لا ټایم نه زما د خوراک بٹ آئی ایم شور چې دا به پرون دی بړو په شان دی مزیداری تھینک یو ویری مچ شازیه ډیر زیاته مننه لیدونکو دا اوس موږ نه پروګرام په خیر پښتونخوا کو ژوند خیری سبا بیا تاسو سره ملاقات کیږي په لوی الله مو سپارم الله مو مل شه د الله پامان